क्लास 12th। आज जो आपका टॉपिक है वह फंक्शंस ऑफ मनी है। कल हम लोगों ने देखा था कि मनी एंड बैंकिंग में मनी का क्या इम्पोर्टेंस है। ये एक अच्छा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसकी सहायता से लोग कोई भी कमोडिटी को परचेस कर सकते हैं या एक दूसरे से खरीद सकते हैं। और आज जो है ये फंक्शंस ऑफ मनी के बारे में जानेंगे। फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है? As explained above, the first foremost role of the money is that it is act as a medium of exchange. Barter exchanges become extremely difficult in large economy because of the high cost people would have to incur looking for the suitable person to exchange their surplus. बार्टर एक्सचेंज में ये था कि उसमें लोग ये ढूंढते थे कि कोई ऐसा सरप्लस वाला व्यक्ति हो जिससे हम अपनी कमोडिटी को बदल सकें। मनी ऑल्सो एक्ट एज ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ द अकाउंट। मनी जो है वो कन्वीनियंट यूनिट ऑफ द अकाउंट के लिए सूटेबल तौर पे काम करता था। द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस इन द मॉनेटरी टर्म। सभी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस की जा सकती थी। व्हेन वी से दैट द वैल्यू ऑफ सर्टेन रिस्ट वॉच इज 500, वी मीन दैट रिस्ट वॉच कैन बी एक्सचेंज फॉर द 500 यूनिट ऑफ द मनी, वेयर यूनिट ऑफ द मनी इज रूपी इन दिस केस। जहाँ पे 500 रुपये वैल्यू होती थी वहाँ पे घड़ी की वैल्यू की अगर 500 रुपये है तो वो 500 रुपये से ही एक्सचेंज की जा सकती है। लेकिन इफ द प्राइस ऑफ द पेंसिल इज ₹2, देन दैट द पेन इज ₹10, we can calculate the relative price of the pen with respect to the pencil, मीन 10 डिवाइडेड बाई 2 करो तो ये 5 आ जाएगा। तो सेम नोटेशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द वैल्यू ऑफ द मनी इटसेल्फ in the commodity. In the above, a rupee is worth rupees 1.1 divided by 2 means 0.5. Thus, if the price of all the commodity increase in the term of money, अगर प्राइस ऑफ सभी कमोडिटी की मनी की बढ़ जाती है तो इन टर्म ऑफ द एनी कमोडिटी में डिक्रीज in sense that the unit of the money cannot be purchased less of the any commodity. We call it to the deterioration in purchases power of the money. Barter system has other deficiency. इसमें कुछ कमियां भी थी। It is difficult to carry forward one wealth under the barter system. Suppose you have endowment of the rice. अगर आपके पास राइस होता which you do not wish to consume today, and tell you may regard this stock of the surplus rice as a asset. आप उस चावल को इकट्ठा कर सकते थे सरप्लस राइस के रूप में एसेट के तौर पे, which you wish to consume or ever sell off, acquiring the other commodity in future date. But the rice is perishable item and cannot be stored beyond the certain period. एक समय के ऊपर से आप उसको नहीं रख सकते हैं। Also, holding the stock of the rice require a lot of the space. You may have to spend considerable time and resources looking for the people with a demand for the rice. When you wish to exchange your stock for buying the other commodity, जब आप दूसरी कमोडिटी लाने के लिए कोई स्टॉक को यूज करते हैं, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इफ यू सेल योर राइस फॉर द मनी. Money is not a perishable and storage costs are considerable lower. It is also acceptable to anyone at any point of time. Thus, the money can act as a store of the value of individual. मनी को आप स्टोर कर सकते हैं और किसी भी वक्त आप यूज कर सकते हैं, मगर वही सामान की जो वैल्यू है उसको आप ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं। राइस प्राइस लेवल में एरोड द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी. इट मे बी नोटेड दैट एसेट अदर देन द मनी कैन बी स्टोर ऑफ द वैल्यू गोल्ड, लैंड, प्रॉपर्टी, हाउस टू बी इंट्रोड्यूस शॉर्टली, बट हाउएवर दे मे नॉट बी इजिली कन्वर्टेबल टू अदर कमोडिटी एज यूनिवर्सली. सम कंट्रीज हैव मेड अटेम्प्ट टू मोर toward an economy
which use less of the cash, more of the digital transactions. And the cashless society describe the economy where the financial transactions are not concerned with the money in a physical banknote rather than the transfer of digital information in electronic representation of the money between the transaction party. The Indian government has been considered investing various reforms of the great financial inclusion. During the last few years, initiatives such as Jan Dhan account, Aadhaar enabled system, and e-wallet financial switch system other strengthen the government to resolve go cashless mode. Today the financial inclusion is a realistic dream because of the mobile and smartphone penetration. तो ये बताया गया कि मनी का इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे पहले जब वैल्यू, मान लीजिए किसी सामान की कोई वैल्यू अगर 500 रुपये है, तो अगर आप वो 500 रुपये आप देते हैं तो उसी के बदले में आपको वो सामान मिलता था। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था तो अगर लोग पहले चावल होता था तो चावल को वाले के बदले में जिनको सरप्लस, जिनके पास वो कमोडिटी होती थी, उनको वो ढूंढते थे और उनसे वो कमोडिटी बदलते थे। लेकिन अगर नहीं मिलता था तो वो उस कमोडिटी को लंबे समय तक नहीं रख सकते थे क्योंकि वो कमोडिटी खराब हो जाती थी। इसके बदले में ये जो है ये जब मनी का सिस्टम आया तो मनी का यूज लोग करने लगे और इसको लंबे समय तक रखने लगे, और फिर बाद में धीरे धीरे ये प्रचलन चेंज होकर के कैशलेस फॉर्म में आया, डिजिटल फॉर्म में आया। तो अब ये इसको जब भी अगर आवश्यकता हो, ये नहीं होता था कि जैसे पहले लोगों के पास चावल होता था तो चावल को अगर जल्दी ना बदलें तो वो 5-6 महीने के बाद चावल खराब हो जाता था, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू अच्छी नहीं मिलती थी। लेकिन अगर मनी को आप रखे रहेंगे, मनी को 5-6-7 महीने 8 महीने के बाद भी आप चाहे वो कमोडिटी परचेस करना तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। तो ये सब जो वैल्यूज है ये लंबे समय तक रखी जा सकती है मनी को। अच्छा, इसको एक शॉर्ट फॉर्म में भी किया गया और इसको डिजिटाइज फॉर्म में भी रखा गया, जैसे जनधन अकाउंट हो गया, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया, ई वैलेट हो गया। जब आपका मोबाइल का ट्रांसमिशन आया और ये कैशलेस फॉर्म में ज़्यादातर अब इस तरह से यूज़ किया जाने लगा, तो जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना और कैशलेस ट्रांजैक्शन को यूज़ में लाना भी आसान हो गया कैशलेस सोसाइटीज़ के लिए। तो ये है फंक्शंस ऑफ मनी, और इसको पढ़ लीजिएगा। और कल हम लोग देखते हैं डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई ऑफ द मनी के लिए।